Good morning. Welcome to DME 102 Engineering Drawing 1. The topic we will continue with engineering curves. In the last class we have done cycloid. The last question what we did in the last class was cycloid. So what is a cycloid? I am repeating so that you can connect with your last topic. Cycloid is a curve traced by a point, and that point is situated on the circumference of a circle, and that circle is rolling over a straight line. साइक्लॉइड वह बिंदु पथ है जो कि किसी बिंदु के द्वारा बनाया जाता है और वह बिंदु उसी वृत्त के परिधि पे स्थित है और वह वृत्त एक सरल रेखा के ऊपर बिना फिसले आगे बढ़ रहा है. ये आपका जो है लास्ट हमने किया था. एंड इन दैट व्हाट वी डिड, वी टुक अ डायरेक्टिंग लाइन विच इज गिविंग द डायरेक्शन एंड देन द जनरेटिंग सर्कल. Why we are calling it as generating circle? Because this circle is having that point on the circumference. अपनी परिधि के ऊपर वो बिंदु लेकर ये आगे बढ़ रहा है और वो आपका जो है कर्व जनरेट कर रहा है. So इसके जब आगे बढ़ेगा ये तो आपका जो कर्व आएगा वो ये शेप आया था. This was the shape. This was the shape. Let me yes. एंड इसके बाद हमने इसके ऊपर टेंजेंट एंड नॉर्मल ड्रॉ किया था. इसको हमने साइक्लॉइड बोला था. दिस कर्व इज a cycloid curve. Now you imagine that this line which we are saying is not a straight line. इसकी जगह एक curved surface आ गया. Now instead of this line, the directing surface is a curved surface. Okay. अब यहां पर अगर ये सर्कल इसके आउटर साइड में, बाहरी तरफ आउटर साइड में रखा है और अब इसको रोल करें, तब इस टाइम पे जो कर्व आएगा उसको हम कहेंगे epicycloid. So what is the definition of a epicycloid? Epicycloid is a curve traced by a point, and that point is situated over the circumference of a circle, and that circle is rolling outside an other circle. This is another circle, and this circle, generating circle, is rolling outside. Okay. किसी बिंदु द्वारा जनरेट बनाया गया बिंदु पथ, जबकि वह किसी वृत्त की परिधि पे है और वह वृत्त किसी दूसरे वृत्त के बाह्य तरफ आउटर साइड रोल कर रहा है विदाउट स्लिपिंग, तो उसको हम कहते हैं एपीसाइक्लॉइड. ओके. सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ एन एपीसाइक्लॉइड. नाउ व्हाट इज द क्वेश्चन? क्वेश्चन इज draw an epicycloid when the diameter of the generating circle is 30 mm and the diameter of the directing circle is 100 mm. Draw an epicycloid when the diameter of the generating and directing circle is 20 mm and 100 mm respectively. Generating circle dia is 20 mm. Directing circle dia is 100 mm. As I have told you that this is the directing circle, so the diameter of this is given
100 and the diameter of generating circle is 20 mm. This is what is given. Okay. Now we have to draw the epicycloid. हमको जो एपिसाइक्लोइड बनाना है उसमें जो जनरेटिंग सर्किल है उसका डाया दिया हुआ है 20 और डायरेक्टिंग सर्किल का डाया दिया हुआ है 100 और इसके डायमेंशन से हमको एपिसाइक्लोइड बनाना है. सो द फर्स्ट स्टेप टू ड्रॉ द epicycloid is we need the angle of the arc. What is it? This is an arc of the directing circle. This arc, this angle is equivalent to the distance, radian distance here, in which the generating circle will complete one cycle. ये जो आर्क है हमारा थीटा जिसकी वैल्यू हम निकालेंगे वो इतने के बराबर है जिसमें हमारा जनरेटिंग सर्किल एक साइकिल को कंप्लीट कर ले. सो द फर्स्ट स्टेप टू गेट इज थीटा. द फॉर्मूला ऑफ कैलकुलेटिंग थीटा इज स्मॉल आर over capital R into 360. So what is small r? Radius of generating circle. And what is capital R? Radius of directing circle. Okay. Though the value of small r is 20 by 2 is 10 mm and radius of directing circle is 100 by 2 because the diameter is there, so it is 50 mm. Okay. Now you can calculate theta, you can put the values 10 over 50 into 360. So this will be 72 degrees. The angle which is coming out is 72 degrees. So this angle will be taken as 72 degrees. Now how to make the 72 degrees of the directing circle? You can take a vertical line, एक vertical line ले सकते हैं हम जिसका रेडियस हमारा इक्वलेंट टू कैपिटल R है, इज इक्वल टू 50. सपोज दिस इज पॉइंट O, अ सेंटर. यहां से मैंने कैपिटल R के बराबर 50 के बराबर डिस्टेंस लेकर अब 72 डिग्रीज लेना है. 36 डिग्रीज ऑन द राइट साइड एंड 36 डिग्री ऑन द लेफ्ट साइड. वी कैन कैलकुलेट इट एंड वी कैन ड्रॉ दिस. ये इस तरह से कर रहे हैं जिससे कि हमारा जो कर्व है वो सेंटर में आ जाए. ऐसा हमने इसलिए किया जिससे कि हमारा जो कर्व बने वो बिल्कुल सेंटर में बन सकता है. अदरवाइज व्हाट यू कैन डू, you can take this angle as 0 degrees and then you can take 72 degrees here. ये भी ले सकते हैं. Otherwise, another way, आप इस 72 degrees को यहां ना बनाकर ऐसे भी बना सकते हैं. So that is not a compulsory step that you have to make it in the center, but in the drawing we take the figure in such a way that it looks good. इस तरीके से हम चूज करते हैं कि वो देखने में भी अच्छी लगे, एक सिमेट्री रहे. तो सिमेट्री के हिसाब से हमने ये स्टेप किया कि इसको सेंटर में लेके इक्वलेंट टू 50 बना लिया. ओके. नाउ यू कैन गिव द डायमेंशन एज 50. नाउ व्हाट इज रिक्वायर्ड?
अब ये वो आ गया आपका कर्व जिसके ऊपर आपका जनरेटिंग सर्किल मूव करेगा, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए? द जनरेटिंग सर्कल। एक्सटेंड दिस लाइन equivalent to small r, equivalent to small r, and draw a circle here. This circle is your generating circle. This circle is generating circle which will generate the curve. Means the point is situated on the circumference of this circle. हमने जो साइक्लॉइड में किया था वो यहां किया था जनरेटिंग सर्कल, और इस स्टेप को जो किया था हमने इक्वलेंट टू 2 पाई आर लिया था। वाई 2 पाई आर? जिससे कि हमारा जो सर्कल है वो पूरा एक कंप्लीट साइकिल कर ले। ये किसमें हुआ था? साइक्लॉइड। अब एपिसाइक्लॉइड में हमने क्या किया? इस स्ट्रेट लाइन को हमने कर्व में ले लिया, इक्वलेंट टू 72 डिग्रीज कैलकुलेट करके, थीटा इज इक्वल टू स्मॉल आर ओवर कैपिटल आर इंटू 360, एंड देन यहां पर हमने जनरेटिंग सर्किल ड्रॉ किया था, वही चीज हमने यहां पर रिपीट करी है। वी हैव नॉट डन एनीथिंग न्यू, ओनली the generating circle is on a curved surface now. Okay, all right. What was the next step in the cycloid? We divided this circle in equal 8 parts. बराबर 8 parts में divide किया था। Same step we have to do here. Divide the generating circle in equal 8 parts. This all line work is with 2H grade pencil, thin lines. Now, what we did in cycloid, we divided this 2 pi r in equal to 8 parts. Why? Because the circle is divided in equal 8 parts. हमने 2 pi r के बराबर की जो लाइन थी उसको बराबर 8 भागों में विभाजित किया था। क्यों? क्योंकि ये सर्किल हमारा 8 में है। सेम स्टेप विल डू हेयर। यहां पर अब ये जो 72 डिग्रीज है उसको हम 8 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। ये जो हमारा सर्कल है, थीटा वैल्यू आई है डायरेक्टिंग सर्कल की, एंड आर्क, उसको 8 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। 8 पार्ट्स में क्यों? क्योंकि हमारा जो सर्कल है यहां पर ये 8 पार्ट्स में डिवाइडेड है। सो वैल्यू इज 9 डिग्रीज। सो यू कैन यूज योर प्रोटेक्टर फॉर 9 डिग्रीज, 0 degree, 36 degrees, then further you can divide 18 degrees and 18 degrees, then again 9 degrees for the subdivisions, and in total the divisions are, the number of divisions are 8. सबसे पहले हमने 72 को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, 36 एंड 36, फिर उसको बराबर डिवाइड कर लिया 18 डिग्री 18 डिग्री, फिर उसके बाद हर 18 को हमने डिवाइड कर लिया। ऐसा क्यों कर रहे हैं हम? टू अवॉइड द एरर। सपोज दिस इज 36, अब मैंने जो यहां पर ये एंगल निकाला 18, इसको मैंने लेकर यहां पर मार्क कर दिया। नाउ दिस इज कांस्टेंट, करेक्ट। सो जो भी आपका एरर है वो ह्यूमन आई बार बार आपके प्रोटेक्टर को लेकर बनाएगी, तो एरर होने के ज्यादा चांसेस है। बट इफ आई डू दिस, देन आई कैन एटलीस्ट रिड्यूस अ पार्ट ऑफ एरर। ओके, देन फर्दर 18 डिग्रीज को डिवाइड करके 9 डिग्रीज, फिर उतना डिस्टेंस लेके मैंने यहां मार्क कर लिया। ऑलराइट, ओके। सो this is your center C0, this is point 0, the direction is clockwise,
This point will be 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8. ऐसे यहां पे हमने किया था 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8. Then O as a center, O as a center, 7 equivalent to 7, O and 7 distance, an arc. ये बिल्कुल वही स्टेप है जो हमने यहां किया था, 7 and 1 से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करी थी हमने, इक्वलेंट टू 2 पाई आर. यहां पर हमने O सेंटर रख के 7 पे पॉइंट रख के इक्वलेंट टू 72 डिग्रीज लाइन ड्रॉ किया. देन नेक्स्ट O as a center and 6 as a distance, O6 as a distance. O6 and 2 will be your next line. Then O5 distance, 5, 3 will be the next line. And last O4, so 4 will be the next line. ये अगर साइक्लॉइड को देखें, हर लाइन से हमने यहां पर इक्वलेंट टू 2 पाई आर लाइंस ड्रॉ करी थी. दिस इज द स्टेप व्हाट वी डिड इन अ कर्व सरफेस. नाउ आई एम रिमूविंग दिस, क्योंकि बिल्कुल वही चीज रिपीट कर रहे हैं, बस फर्क ये आ गया है कि वहां पर एक स्ट्रेट लाइन थी और यहां पर जो एक कर्व लाइन है विद द रेफरेंस ऑफ द बेस लाइन, जो कि एक कर्व है. अब एक चीज यहां रह गई, द सेंटर लाइन. O as a center, CO, you will draw a center line. The center line is drawn with a small dash and big dash with the ratio of 1:3. Means what I am saying is, if it is 1, then this is 3. Then this is 1, then this is 3. Then this is 1 and 3. This is the ratio of the length of small dash and big dash. और ये आपका सेंटर लाइन को रिप्रेजेंट करती है. सेंटर लाइन जब शो होती है तो वहां पर रिप्रेजेंट करती है. ऑलराइट, नाउ एक्सटेंड. फर्स्ट ऑफ ऑल यू गिव द नेम्स ऑन द डिविजन्स. दिस इज डिवीजन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8. Extend all the lines up to the center line. जो हर डिवीजन से जो लाइन है एक्सटेंड कर दीजिए सेंटर लाइन तक. ऐसा करने से हमको डिफरेंट सेंटर्स लोकेट हो जाएंगे. लाइक जब हमारा सर्कल C0 पे है तो पॉइंट हमारा 0 पर है. जब हमारा सर्कल C0 पे है पॉइंट हमारा 0 पे है. जब हमारा सर्कल C1 पे आया, this is C1, this is C2, C3, C4, C5, C6, C7 and center 8, C8. जो डिस्टेंस है पॉइंट का सेंटर से इक्वलेंट टू R, दिस इज द रेडियस. हमेशा इतनी ही डिस्टेंस पे वो सेंटर से बना रहेगा, बिकॉज इट इज ऑन द पेरिफेरी, परिधि के ऊपर स्थित है. अब ये कर्व हमारा जो सर्कल है मूव होके C1 पे आ गया. सो व्हाट हैज हैपेंड, द कर्व वी विल गेट लाइक दिस. सर्कल हमारा मूव होके C0 से C1 पे आ गया. तो हमारा जो पॉइंट है इक्वलेंट टू रेडियस C1 पे रख के अगर मैं ये 1 की जो लाइन है यहां कट करता हूं तो ये पॉइंट आ जाता है. पहले C0 पे था ये, अब मैंने यही डिस्टेंस लेके यहां कट किया तो ये आपका यहां पॉइंट आ गया C1. दिस इज द डिस्टेंस C1. देन C2 as a center, radius equivalent to R, and follow the line of 2. This is 5, 2. Cut on the line 2. This is the point. Then C3 से लेकर C4 से point 4 आ गया. This is point 3.
this is point 2, then C5 say you can cut the line of 5 and this will be your point 5. Then C6, C7 and C8. These are the points. You can give the numbers or you have to remember that these are the points. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 5, 6, 7 and 8. These are the points. I repeat 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8. ये कहां से आया C7? यहां से हमने रख के इक्वलेंट टू रेडियस जब कट किया तो ये 7 की लाइन हो सकता है ये हमारा थोड़ा सा बाहर आए, हो सकता है अंदर आए. इट डिपेंड्स कि आपका जो यहां पर एंगल है और जो रेडियस है उसका क्या है वो चलता है. अंदर और बाहर इस तरीके से पोजीशन हो सकती है. ओके, नाउ यू ज्वाइन ऑल द पॉइंट्स फ्री एंड 0 to 1, 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4, 4 to 5, 5 to 6, 6 to 7 and 7 to 1. This is the curve which is known as epicycloid. The best example for the epicycloid is when the wheel of a cycle is rolling over a speed breaker, a bumper, a big bumper. So there is a curve. On that time, whatever the curve traced by the point situated on the wheel of the cycle, it will be known as the epicycloid. जो बेस्ट एग्जाम्पल है आपका उदाहरण जो है, अगर आपकी साइकिल का पहिया एक बड़े इमेजिन करिए स्पीड ब्रेकर है उसके ऊपर से गुजर रहा है, उस टाइम पे जो पॉइंट जो कि पहिए के टायर पे लिया हमने इमेजिन किया है कर्व बनाएगा, उसको हम एपिसाइक्लोइड बोलेंगे. ओके, नाउ द टेंजेंट एंड नॉर्मल एट एनी पॉइंट P on the curve. Tangent and normal at any point P on the curve. Suppose I am taking point P here, point P. Now this point is between point 2 and point 3. 2 और 3 के बीच में मैंने एक पॉइंट लिया P. I have to draw the tangent and normal at this point P. First step, I have taken the point between any 2 points, locate कर लिया. Then second step, equivalent to radius, P point पे रख के center line को कट करिए. This center line will be cut at 2 places. Will be cut at 2 places equivalent to R. ये है. एक आपका जो पॉइंट आया C0, C1, C2 एंड C3, ये आया आपका पॉइंट C2 एंड C3. ये आया आपका पॉइंट C0 और C1 के बीच में. So which one is right? Which one is correct? The point which is between C2 and C3. Why? Because I have taken the point between point 2 and 3. इस पॉइंट को मैं कंसिडर करूंगा, इसको कंसिडर नहीं करेंगे. So जहां पर भी C2 और C3 के बीच में पॉइंट कट हुआ है, अब इसको कंसिडर करना है. मैं रिपीट करता हूं, रेडियस के बराबर डिस्टेंस लिया, P के ऊपर रख के इसको कट किया, तो सेंटर लाइन 2 जगह कट हुआ. एक यहां बिटवीन C0 एंड C1, एक यहां बिटवीन C2 एंड C3. सो आई हैव टू टेक द पॉइंट विच इज कमिंग बिटवीन C2 एंड C3. नाउ यू join this point with the point O. Join this point with point O. Wherever this line is intersecting the generating line is this. Wherever it is cutting the line, you can take a point, intersection of generating and this line which we are joining from the center line and O. Now, intersection point and point P, if I join this, then this will be known as normal. अभिलंब कह सकते हैं हिंदी में. एंड इसके ऊपर 90 डिग्री बनाता हुआ जो लाइन होगा उसको हम टेंजेंट, स्पर्श रेखा कह सकते हैं. सो दिस इज
tangent and normal at any point P on the curve epicycloid. So the theta is small r over capital R into 360. Small r is the radius of the generating circle, capital R is the radius of the directing circle. We will calculate theta. This is an arc. This arc will give the distance in which this generating circle will complete one complete revolution. This is what is the fundamental behind this. So epicycloid, hypocycloid curves are used in the gear profile when you are making the gear profile. Then a type of curve comes and we draw and we use this method to make that profile. Okay. Now the special condition is there. If theta is equal to 180 degrees, अगर थीटा बराबर 180 डिग्री हो गया, then what? Imagine theta is equal to 180 degrees. This theta is equal to 180 degrees. ये कब आएगा? ये कब आएगा? ये तब आएगा जबकि हमारा 2r is equal to capital R. क्या मतलब हुआ? क्या मतलब हुआ? हमारा जो जनरेटिंग सर्किल का डाया है वो डायरेक्टिंग रेडियस के बराबर हो जाए. जो जनरेटिंग सर्किल का डाया है वो डायरेक्टिंग रेडियस के बराबर हो जाए, तब हमारा जो एंगल आएगा थीटा वो आ जाएगा 180 डिग्री. नाउ इफ यू पुट द वैल्यू देन सपोज 40-80 लेते हैं हम, 40 and 80. तो यहां पर हो गया थीटा इज इक्वल टू स्मॉल r ओवर कैपिटल R इंटू 360. यहां कितना आ गया? 180 डिग्री. तो इसका जो रेडियस है 80, वो इसका क्या हो गया? डायमीटर, मतलब 2r. मतलब अगर मैं ड्राइंग बना रहा हूं तो क्या हुआ? अगर ये हमारा कैपिटल R है तो जनरेटिंग सर्किल का ये क्या हो जाएगा? डायामीटर हो जाएगा. करेक्ट? स्मॉल r इंटू स्मॉल r. तो r प्लस r इज 2r इक्वल टू कैपिटल R. तो इस कंडीशन में, दिस इज अ स्पेशल कंडीशन व्हेन द थीटा इज 180 डिग्रीज. इस कंडीशन में जो आपका एपिसाइक्लॉइड होता है वो कर्व ना रह के एक स्ट्रेट लाइन आ जाता है. ऑल द पॉइंट्स विल कम एट अ स्ट्रेट लाइन, जो कि आपको उसके डायामीटर पे नजर आएंगे. इज इट क्लियर? सो दिस इज अ स्पेशल कंडीशन व्हेन थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्रीज. ऑलराइट, नाउ hypocycloid. Hypocycloid जस्ट ऑपोजिट ऑफ द एपिसाइक्लॉइड. एपिसाइक्लॉइड में क्या किया साहब? हमने इस कर्व के ऊपर हमने जो है जनरेटिंग सर्किल को मूव कराया. इट वॉज मूविंग आउटसाइड अनदर सर्किल. इट वॉज मूविंग आउटसाइड अनदर सर्किल. नाउ change the scenario. The circle is moving inside another circle. अभी मैंने इसको बाहर की तरफ बनाया था, मैंने अब इसको अंदर की तरफ बना लिया. तब इस कंडीशन में जो आपका कर्व बनेगा, इस कंडीशन में जो कर्व बनेगा वो कहलाएगा हाइपोसाइक्लॉइड. ओके, सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द हाइपोसाइक्लॉइड? Hypocycloid is a curve traced by a point. The point is situated over the circumference of a circle, and that circle is rolling inside another circle, and that circle is rolling inside another circle. The curve traced by that point will be known as the hypocycloid. Hypocycloid वह कर्व है जो कि किसी बिंदु के द्वारा बनाया जाता है. वह बिंदु किसी वृत्त की परिधि पे स्थित है और वह वृत्त किसी दूसरे वृत्त के अंदर की तरफ रोल कर रहा है. द बेस्ट एग्जाम्पल
for the hypocycloid is when your wheel of the cycle is passing through a deep big और जो साइकिलिंग करते हैं, जो वहां पर साइकिलिंग स्टेडियम्स होते हैं, साइक्लिस्ट जिस पे मूव करते हैं, तो वो एक कर्व होता है, दैट इज अ बिग कर्व. उसमें उस टाइम पे अगर कोई कर्व बनता है तो उसको हाइपोसाइक्लोइड कहते हैं. तो एक बड़े से गहरे गड्ढे में से जब हमारे साइकिल का पहिया निकले, उस टाइम पे जो कर्व बने उसको हम हाइपोसाइक्लोइड कहेंगे. Now the method to make the hypocycloid, just opposite to the epicycloid. First step is theta. You have to calculate theta. So what should be the theta? Now the question in the question bank is draw a hypocycloid when the diameter of the generating and directing circle is 20 mm and 80 mm respectively. This is question number 19. Draw a hypocycloid when the diameter of the generating and directing circle is 20 mm and 80 mm respectively. हाइपोसाइक्लोइड बनाना है जबकि जनरेटिंग सर्किल और डायरेक्टिंग सर्किल का जो डायमीटर है वो 20 mm और 80 mm है. ओके, सो फर्स्ट स्टेप इज यू हैव टू कैलकुलेट थीटा. फॉर्मूला इज सेम, स्मॉल r ओवर कैपिटल R इंटू 360. सो व्हाट इज स्मॉल r? 10. What is capital R? 40. Because the diameter is 20, the diameter is 80 by 2 in both the cases. Then multiplying with 360 degrees is coming out to be 90 degrees. So the theta is 90 degrees, a quadrant. All right. So what will be the next step? You will take 90 degrees in the left side and right side, including left side and right side, 45 degrees and 45 degrees. So that a symmetry is maintained. Okay, so 45 degrees here and 45 degrees here. Equivalent to capital R, that is 40. आप यहां से लेके रेडियस और उसके बाद कर्व ड्रॉ करेंगे. Now your platform is ready to produce hypocycloid curve. How? Because this is the directing line. This is the directing line. So second step is done. We have drawn theta is equal to 90 degrees and this point is O. What is the next step? Next step is you will draw the generating circle. So in this condition, generating circle is inside another circle. So the circle will be drawn here. Circle will be drawn here. This is inside. Correct? वहां पर क्या किया था हमने? बाहर की तरफ बनाया था, यहां बनाया था. एपिसाइक्लोइड के लिए हमने बाहर बनाया था. Now we have to make the circle inside. ठीक है? What will be the next step? Divide this circle in equal 4 parts or 8 parts? 8 parts. Okay? Always, so that you are getting the points closer. अगर मैं 4 करता हूं तो पॉइंट्स दूर मिलेंगे हमें. अगर मैं 8 करता हूं तो पॉइंट पास मिलेंगे. अगर मैं 12 करता हूं और पास मिलेंगे. इट्स योर चॉइस. एंड जितना मैथमेटिकली एंड जो एंगल है वो आपको अलाउ कर रहा हो, क्योंकि अगर आपका 2.15 डिग्रीज आ गया, 2.15 डिग्रीज कैलकुलेशन के यू कैनॉट मेक इट. यू कैनॉट मेक इट क्योंकि आपका जो लीस्ट काउंट है प्रोटेक्टर का वो 1 डिग्री
है या 0.5 है, करेक्ट? ओके, नाउ डिवाइड दिस इन इक्वल 8 पार्ट्स. ये कैसे करेंगे सब? हमने अभी 45 ये 2 पार्ट्स हो गए. अब यहां पर हम ड्राइंग मेथड यूज करेंगे. यू कैन ज्वाइन दिस पॉइंट विद द अदर एंड and bisect it. More than half, an arc from the second point, same distance, an arc. इसको जब ज्वाइन करेंगे, your angle is divided in equal 2 parts. अब ये डिस्टेंस लेकर मैं यहां मार्क कर दूंगा, तो आपका जो 90 डिग्रीज है वो इक्वल 4 पार्ट्स में डिवाइड हो गया. But the requirement is that we have to divide this in equal 8 parts. So another step will be taken. Again join this point and this point. Midpoints, bisecting method. Join it. Wherever you are getting the point, वो अपने divider से लेकर वो mark कर लीजिए. So you are dividing 90 degrees in equal 8 parts. So this is the drawing method, how you can divide. Okay. Again, you have to give the names. C0. Now it is rolling anti-clockwise. Correct? So C0, this point will be 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8. Here, this is point 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8. Next step, O as a center, 7 and 1. O as a center, 7 and 1 distance. Draw the line parallel to the baseline, which is in a curve. Again, O as a center, 0.6 distance, 6 and 2 will be under this line. Then C0 center line. For the center line, I have already explained. Small dash, big dash, small dash, big dash, a separate line. This is a separate line for the center. Then O as a center, 5 distance, and this line will be for 0.5 and 3. And last is 0.4. You can give the names of the centers. C0, C1, C2, C3, C4, 5, 6, 7 and C8. These are the centers. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8. Same method, equivalent to radius, distance. Center is C1. This is C1. Radius C1. Now one line is passing through this place. So यहां से लेकर 1 का पॉइंट जब कट करेंगे तो आपका पॉइंट ऊपर की तरफ आएगा, इसमें ऑपोजिट है. Then C2 equivalent to radius. 2 का लाइन जब कट करेंगे, this is the line for point 2. C3, this is the point. Radius C3 जब आप करेंगे कट तो आपका पॉइंट यहां आ जाएगा. 3 का C4 करेंगे तो यहां आ जाएगा पॉइंट. C5, C6, C7 and C8. So these are the points. Now you join all the points, you will get a curve like this. You will get a curve like this. So this curve is known as hypocycloid.
Now at tangent and normal at any point P on the curve, tangent and normal at any point P on the curve, you can take the point anywhere. Suppose I have taken the point between point 4 and 5, 4 और 5 के बीच में लेते हैं इस बार. सेम प्रोसेस, इक्वल टू रेडियस P के ऊपर रखिए और उसको कट करिए सेंटर लाइन पे. ये दो जगह कट करेगा, करेक्ट. तो आपका एक यहां कट किया और एक इसने यहां कट किया. एक पॉइंट आता है बिटवीन C2 एंड C3, लीव इट. एक आता है हमारा पॉइंट C4 एंड C5 के बीच में, टेक इट. उस पॉइंट को ले लीजिए. जो ये पॉइंट आया है उसको एक्सटेंड करेंगे हम ऊपर बेस लाइन तक. जहां पर भी बेस लाइन कट होता है, यहां पर भी बेस लाइन कट होता है, उस पॉइंट को, इस पॉइंट को हमने क्या किया, बेस लाइन तक कट किया. कैसे? यहां पर O एंड इसको मिलाते हुए. O को हमको इसमें अलाइनमेंट में रखना जरूरी है, क्योंकि हर कोई चीज O से ही कंट्रोल हो रहा है. तो क्या किया हमने, जब इसको हमने यहां कट किया, इस पॉइंट को और O को मिलाते हुए जब ये पॉइंट हम ऊपर लेके गए, जो बेस लाइन कट होगा उस पॉइंट को पॉइंट P से ज्वाइन करेंगे. तो दैट विल बी योर नॉर्मल, एंड 90 डिग्रीज टू दिस विल बी योर टेंजेंट. Okay, so this is the curve and hypocycloid is the name. Now suppose the theta is equivalent to 360 degrees. How? When small r is equal to capital R. Small r is equal to capital R. दोनों वैल्यूज बराबर हो गई. तो जनरेटिंग सर्कल एंड डायरेक्टिंग सर्कल, जनरेटिंग सर्कल एंड डायरेक्टिंग सर्कल बराबर हो गए. आई एम सॉरी, यहां पर थोड़ा सा कंफ्यूजन है, मैं वो क्लियर कर रहा हूं. प्लीज मेक इट क्लियर. जब स्मॉल r और कैपिटल R बराबर हैं तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि ये सर्कल इसके अंदर मूव कर सके. जो मैंने यहां पर आपको बताया था, कि इनसाइड द सर्कल, प्लीज डू अ करेक्शन, दिस सर्कल इज रोलिंग इनसाइड, दिस सर्कल इज रोलिंग इनसाइड. तो ये जो कर्व बनेगा यहां पर वो हाइपोसाइक्लॉइड होगा. प्लीज डू द करेक्शन. जो इसमें बताया था हमने, थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्रीज, आई एम रिपीटिंग, थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्रीज जब आया था, तो यहां पर जो ये सर्कल है वो एक आउटर सर्कल के इनसाइड मूव कर रहा है. इस कंडीशन में ये हाइपोसाइक्लॉइड बनेगा. इस कंडीशन में हाइपोसाइक्लॉइड बनेगा. ओके, ये करेक्शन कर लीजिए. वो जो कर्व बनेगा 180 डिग्रीज, जो कि एक स्ट्रेट लाइन आएगा, वो हाइपोसाइक्लॉइड कर्व होगा व्हेन द वैल्यू इज थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्रीज. 180 डिग्रीज. ओके, दिस इज द स्पेशल कंडीशन फॉर द हाइपोसाइक्लॉइड, नॉट फॉर द एपिसाइक्लॉइड. Extremely sorry for this. Kindly do the correction. This will be your hypocycloid. Now, for the epicycloid, the special condition is, so this is clear, hypocycloid. इससे ये correct हो गया, ठीक है. Now going back to the epicycloid, when the curve is rolling outside another circle, suppose the condition is small r is equal to capital R, छोटा r जो है बड़े r के बराबर है, तब उस कंडीशन में जो आपका कंस्ट्रक्शन हो जाएगा वो इस तरीके से कुछ हो जाएगा. दोनों वैल्यूज बराबर हैं और ये इसके ऊपर रोल कर रहा है. तो उस कंडीशन में आपका जो कर्व है वो एक ये शेप देता है, क्योंकि ये कर्व जब यहां पर आ जाएगा, इक्वल टू यहां आ जाएगा, ये पॉइंट मैक्सिमम जाएगा. दिस इज द, यू कैन सी दिस कर्व इन द बुक. Special conditions 180 degrees and 360 degrees when theta is equal to 360 degrees. ये तभी आएगा जब स्मॉल r और कैपिटल R बराबर हो गए.
तब ये कंडीशन आएगा 360 डिग्रीज, और ये तब आएगा जब स्मॉल r का जो डाया है, स्मॉल r का जो डाया है वो कैपिटल R के बराबर होगा। ठीक है, तो यू कैन सी द epicycloid curve when the theta is equal to 360 degrees. You can see the hypocycloid curve when the theta is equal to 180 degrees. ये दो conditions आप देख सकते हैं बुक में. If there is any doubt, you can ask it again. Okay. Now the last curve of this chapter, of this topic, is involute. Involute. Involute is a curve traced by a thread. Involute is a curve traced by a thread. When a thread is wounded over a circle or over a surface in such a way that its one end is holded and the other end is moving over the surface shape, so the curve traced by that thread is known as involute. Involute वो कर्व है जो कि किसी, इमेजिन करिए कि किसी सर्कल के ऊपर एक धागे को हमने रखा हुआ है और वह धागा एक सिरे को हमने पकड़ के रखा और दूसरे सिरे को हमने खोलना शुरू किया. ओवर दैट सरफेस वी आर ओपनिंग दैट एंड द कंडीशन इज विदाउट स्लिपिंग. Condition is without slipping, then this will be known as an involute. This will be known as involute. Okay? So, draw an involute curve. Draw an involute curve when the diameter of the circle is 30 mm. Draw tangent and normal at any point P on the curve. तो 30 mm का जो सर्कल दिया हुआ है उसके ऊपर हमने इन्वोल्यूट बनाना है. नाउ अगर आप परिभाषा के हिसाब से देखें, वो ये कहता है कि यहां पर मैंने यहां से लेकर यहां तक एक थ्रेड को बांधा हुआ है मैंने. सपोज दिस इज ए एंड बी पूरा बाउंडेड है. फिर उसके बाद मैंने ए को ओपन करना शुरू किया और पूरा जब ओपन हो गया तो एंड ए यहां चला गया और बी यहीं रह जाएगा. सो इसका कितना लेंथ होगा? इक्वल टू 2 पाई आर. व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ दिस थ्रेड? इक्वल टू 2 पाई आर, जो इसकी परिधि है, वट एवर द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल इज. करेक्ट. तो हमने अब इसको, जो मेथड है इन्वोल्यूट बनाने का, वो बताता हूं. हमने अब क्या किया, सर्कल ड्रॉ करके एक स्ट्रेट लाइन जैसे साइक्लॉइड में करते थे ड्रॉ करा, एंड इक्वल टू 2 पाई आर, इक्वल टू 2 पाई आर डिस्टेंस लेकर, 2 पाई आर डिस्टेंस लेकर इसको ओपन कर लिया. ओके. देन डिवाइड दिस 2 पाई आर इन इक्वल 8 पार्ट्स. Join it with the other end parallel to it. You can give the name 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8. उतने ही पार्ट्स में हम इस सर्कल को भी डिवाइड करेंगे. इक्वल 8 पार्ट्स. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8. Now you imagine that the thread is opening. 0 to 1 ओपन होना शुरू हुआ, तो 0 to 1 जैसे होगा तो 1 के टेंजेंट हो जाएगा. इट विल बी टेंजेंट टू 1. यहां से ओपन होके जैसे होगा 1 के टेंजेंट. सो ड्रॉ अ टेंजेंट लाइन ऑन पॉइंट 1. कितना डिस्टेंस, वो कितना ओपन होगा,
2 पाई आर को जब हमने इक्वल 8 पार्ट्स में डिवाइड किया है, जितना फर्स्ट पार्ट है वहां लेकर मैं मार्क करूंगा तो इतना ओपन हो जाएगा. दिस विल बी योर पॉइंट 1. करेक्ट. लॉजिकली वो यहां से लेकर यहां तक कितना ओपन हुआ, जितना ये डिस्टेंस है. सेकेंड, कीप ऑन ओपनिंग इट. अब 2 के ऊपर ये टेंजेंट हो जाएगा, पॉइंट 2 के ऊपर टेंजेंट हो जाएगा. टेंजेंट मींस 90 डिग्रीज. ओके. कितना ओपन होगा, इक्वल टू distance 2, you can mark. Okay, this is point 2. Then same practice on point 3, tangent means 90 degrees, equivalent to point 3. 4, 4 के बराबर. So हर डिस्टेंस में एक सेक्शन ऐड होता जा रहा है. जितना जितना ओपन होता जा रहा है, एक सेक्शन ऐड होता जा रहा है. अब 5 में क्या होगा, 90 डिग्रीज इक्वल टू 5. वो मार्क कर लीजिए. दिस 6, देन 7, यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस, एंड 8 इज द फाइनल डेस्टिनेशन. सो स्टार्ट मेकिंग द कर्व 0 to 1, 1 to 2, 2 to 3, to 4, 5, 6, 7 and 8. Now if you imagine when the thread is opening with the constant precautions without slipping on the surface, then the curve is increasing. At every step it is increasing, and finally it will be at its maximum. So this is the curve known as involute curve. Now tangent and normal at any point P on the curve. Suppose point P, I have to draw the tangent. इसके ऊपर स्पर्श रेखा और अभिलंब खींचना है जो कर्व है. इस पॉइंट को सेंटर ऑफ द कर्व, इस पॉइंट को सेंटर ऑफ द कर्व से ज्वाइन कर लेते हैं. सपोज पॉइंट P इज हियर, पॉइंट P इज हियर. इसको पॉइंट सेंटर ऑफ द कर्व से ज्वाइन करते हैं. जो आपका डिस्टेंस आया उसका मिड पॉइंट निकाल लीजिए, मध्य बिंदु, मिड पॉइंट निकाल लीजिए. Correct? And draw a semicircle. And draw a semicircle on the progressive side of the curve. जिस तरफ को बढ़ रहा है कर्व, उस तरफ को हम यहां पर लेकर एक सेमीसर्कल ड्रॉ करेंगे. किसके बराबर, जो हमारा डिस्टेंस आया है सेंटर से लेकर यहां तक P एंड O के बीच में. करेक्ट. तो हमने एक सेमीसर्कल ड्रॉ किया. नाउ वेरेवर दिस सेमीसर्कल इज इंटरसेक्टिंग द circumference of the circle, join that point with P. Join that point with P. That will be your normal. That will be your normal. And 90 degrees to normal will be the tangent on point P. I repeat the process. Take any point P, join with O, consider this distance as a diameter, and draw a semicircle on this distance in the progressive side of the curve. Wherever this diameter circumference is intersecting the generating circle circumference, join that intersecting point with point P. That will be your normal, and 90 degrees to the normal will be your tangent. अभिलंब और स्पर्श रेखा कहलाएंगे. जो हमने ये डिस्टेंस आया है उसको अर्धव्यास मानते हुए सर्कल ड्रॉ करेंगे. जो हमारा वृत्त है, जो ऑलरेडी हमारा इन्वोल्यूट का वृत्त है, वहां की सर्कमफ्रेंस पे इंटरसेक्ट करेगा, उस पॉइंट को P से मिला दीजिएगा. सो दिस इज द इन्वोल्यूट कर्व, एंड I think all the curves we have made, like the
parabola, ellipse, hyperbola by the eccentricity method, parabola by rectangle method, and the parallelogram method. In the parallelogram method, yesterday I told you that the lines will be drawn parallel to it, and then this will be divided in equal parts. Then this will be divided in equal parts. If this is 5, then this will be 5. Then we are joining all the points in the center. Correct? Now you have to draw the parallel line to the side. This is 1, then 1. Not the perpendicular line. In the condition of the parallelogram, you will draw the parallel lines to it. So you will get the curve like this. Okay? Not the perpendicular line from the base points, it will be parallel to the side. This is a correction. You can make it. If I have used the word perpendicular, then kindly understand that that is not the perpendicular line, that line will be parallel to the side line. Okay. Now the last question which I have given to you, that intersecting arc method, ellipse by intersecting arc method. Okay. Intersecting arc method, when the axes are given as 80 mm and 50 mm axes, 80 mm and 50 mm, then draw the ellipse by intersecting arc method. Bisect करते हुए draw कर लीजिए. So this is 80 and this is 50. Suppose this is AB, line AB, and this is point CD, intersecting at point O. ये डिस्टेंस दिया हुआ हमारा 50 और ये डिस्टेंस दिया हुआ हमारा 80, जो कि हमारे एक्सिस दिए हुए हैं. नाउ इक्वलेंट टू OA डिस्टेंस, C as a center, OA distance, C as a center, cut on OA. Okay, this is line AB. This is line CD. क्या किया? आपस में समद्विभाजित करते हुए खींच लिया 80 और 50 को, और उसके बाद जो वैल्यू आई OA की उसको लेकर C पे रख के यहां पर कट किया A और यहां पर कट किया B. So this will be our F1 and this will be our F2. F1 and F2. So the figure will be something like this. ये आपका फोकल 1 आ गया, ये फोकल 2 आ गया. आपके जो 4 पॉइंट्स मालूम हैं, ये 4 पॉइंट्स हैं जहां से कि आपका कर्व पास होगा. बाकी पॉइंट्स हमको लोकेट करने हैं. सो डिवाइड F1 एंड F2 इन इक्वल पार्ट्स, कोई भी डिस्टेंस लेकर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. जितने भी आपने लिया है वो इक्वल होना चाहिए. नाउ द मेथड इज टेक अ डिस्टेंस 1A. पहले सिरे A से लेना है मेरे को. किस पॉइंट को? एक पॉइंट को, 1A. F1 पे रख के आर्क लगाना है. 1A लेकर F1 पे रख के आर्क लगाना है. अब इसी आर्क को B सिरे से रख के कट करना है. डिस्टेंस क्या लेना है? B1. डिस्टेंस लेना है B1. ओके, कहां रखना है? F2 पे. जहां जहां पर भी कट होगा, ये पॉइंट कैसे आया? पॉइंट 1 को लेना है. नाउ नेक्स्ट विल बी पॉइंट 2 को लेंगे. कहां से? A से लेकर 2 तक का डिस्टेंस लेंगे, उसको F1 पे रखेंगे, आर्क लगाएंगे. फिर 2 के ही डिस्टेंस को B से लेंगे, 2 के डिस्टेंस को B से लेंगे, F2 पे रखेंगे, आर्क लगाएंगे. A के डिस्टेंस को 3
जितना लेंगे F1 पे रख के आर्क लगाएंगे और B से रख के 3 को लेंगे और फिर F2 पे रख के आर्क लगाएंगे। कीप ऑन डूइंग इट, तो आपको जो कर्व आते जाएंगे, जब आप इसको ज्वाइन करोगे यू विल गेट ellipse. So this is what is your intersecting arc method. Intersecting arc method. Okay. Now, final instructions for engineering drawing sheet. You have A3 size sheet on both the sides, front side and the back side. जो कर्व आपने करने हैं, इसेंट्रिसिटी मेथड से पैराबोला एंड ellipse. दिस इज इसेंट्रिसिटी मेथड. तो ये दो कर्व हो गए, 1 1. देन पैराबोला बाय रेक्टेंगुलर मेथड. एक कर्व ये हो गया, एंड यू कैन डू द प्रैक्टिस ऑफ द पैरेललोग्राम मेथड. नीड नॉट टू ड्रॉ ऑन द शीट. देन ellipse by concentric सर्कल मेथड. एक कर्व ये हो गया. आई कैन काउंट द कर्व 1 2 3 4, 4 कर्व हो गए. देन हाइपरबोला बाय एसिम्प्टोट मेथड. एक कर्व ये हो गया, हाइपरबोला बाय एसिम्प्टोट मेथड. देन साइक्लॉइड, एपिसाइक्लॉइड, hypocycloid and involute. So total number of curves on this sheet will be 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9. Parabola, ellipse, eccentricity method. Parabola by rectangle method. Concentric circle method, ellipse. Hyperbola by asymptote method, cycloid, epicycloid, hypocycloid and involute. 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9. So please don't ask that 9 curves are not coming on the sheet. You can add another sheet. You can take the second sheet, but you can plan your sheet in a nice way. You can divide the sheet in equal 4 parts, 1 2 3 4. And then on the back side you can plan. So smart planning can make all the 9 sheets on the sheet. Otherwise, if something has gone wrong and the spacing and the planning has gone wrong, then you can add another sheet for the engineering drawing, for the engineering curves. This will be your sheet number 3. On every sheet you have to write your name, application number, email ID and branch. Name, application number, email ID and branch. So in this way your engineering curve topic is over, and in the next class we will start the new topic, that is projections. Projection of point will be the first point topic under the orthographic projections. Thank you very much.